Okay, let's now discuss question number 16. It says, prove that the following are irrational. Okay, so there are some 5 parts given in this question, and it is asking that prove that all these 5 parts are irrational. So we have learned about how to prove a number as irrational. For example, we have proved that root 2 is an irrational number, and we have understood that concept, that how we have proved that root 2 is an irrational number. Now in this question, some of the values are given, some different numbers are given, and I need to prove that they are irrational. But we need to keep in mind that we can use the fact that root 2 is an irrational number. हमने रूट 2 को तो इरेशनल प्रूव कर दिया था, तो रूट 2 हम मान के चलेंगे कि वो इरेशनल है, रूट 3 हम मान के चलेंगे कि वो इरेशनल है। रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना आपका काम है। मैंने रूट 2 का प्रूफ बताया था, बहुत डिटेल में हमने उसे डिस्कस किया था। अब रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना, इट्स योर होमवर्क। सो हम इस क्वेश्चन में ये मान के चलेंगे, ये फैक्ट लेके चलेंगे कि रूट 3, रूट 2, ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16. It says the first part of question number 16 is 5 minus this is root 3. 5 minus root 3 is a number, and I want to prove that this number is an irrational number. How will I prove? First thing that I need to know is that root 3 is an irrational number. हम इस फैक्ट को लेके चलेंगे कि रूट 3 एक irrational number है. Okay, now I will say that if I want to prove this as irrational number, so first let us why not assume that this is a rational number. जैसा हमने रूट 2 के लिए किया था, हमें ये प्रूव करना था कि रूट 2 एक irrational number है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया था कि रूट 2 एक रैशनल है, और फिर उसके बेसिस पे हमारा कंक्लूजन कॉन्ट्रेडिक्टरी आया था, इसीलिए हमने कहा था कि हमारा अजम्पशन गलत है. सो हियर ऑल्सो वी विल अज्यूम दैट 5 minus root 3 is an rational number. Okay, it's a rational number. So let 5 minus root 3 is a rational number. मैं मान लेता हूं कि 5 minus root 3 एक rational number है. अब अगर 5 minus root 3 एक rational number है, so I can write 5 minus root 3 is equals to a upon b. Okay, or p upon q. Okay, let us write it as p upon q. नाउ हमने क्या देखा था कि रूट 2 के इरेशनल प्रूफ करने में हमने p अपॉन q सबसे पहले अज्यूम करा कि ये रैशनल नंबर p अपॉन q के बराबर है. फिर हमने कहा कि अगर p अपॉन q में, p और q में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 नहीं है, तो मतलब ये और सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन हो सकता है, हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल राइट दिस फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड वी विल से दैट by simplifying p by q we get a upon b, where a and b are co-prime. हम इन्हें सिंप्लीफाई करके ये मान लेते हैं कि a और b क्या है, को-प्राइम नंबर्स हैं. ये एक फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया. नाउ खास बात ये आती है कि जब मैंने 5 माइनस रूट 3 को p अपॉन q माना, सो p एंड q क्या है, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दैट इज p एंड q आर रैशनल नंबर्स. सिमिलरली इस p और q को सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा a अपॉन b. a और b क्या है, अगेन दे आर इंटीजर्स, और अगर इंटीजर्स है तो a upon b is a rational number. So I will write that 5 minus root 3 is equals to a upon b, that is it's a rational number. From here I can write that 5 minus a upon b is equals to root 3.
Just observe this. I have written that 5 minus a upon b is equals to root 3. Now, just analyze this expression. 5 minus a upon b is equals to root 3. In this expression, what I can see is that this 5, it's a rational number. Okay? Similarly, this a by b, it's also a rational number. Okay? 5 is a rational number, a by b is a rational number, and this root 3. Root 3 is an irrational number. What we can see is that root 3 is an irrational number. We know this. हमने ये proof करा है. Okay? So by default, I will assume that root 3 is an irrational number. Now, 5 is a rational, a by b is a rational. So what about 5 minus a by b? ये जो 5 minus a by b पूरा number है, 5 minus a by b क्या है? Is a rational number. Okay? हम देख सकते हैं 5 रैशनल a by b रैशनल, तो दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे ऑब्वियसली रैशनल नंबर ही आना है. सो इट इज 5 minus a by b. So we will call this as a rational number. Then root 3 is an irrational number. So what we can see is that a rational number is equivalent to irrational number. Is it possible? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के बराबर हो जाए? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता. Okay? So what we can write is, since LHS is rational while RHS is irrational. Since LHS is a rational while RHS is irrational, it implies that our assumption that 5 minus root 3 is a rational is wrong. This implies that 5 minus root 3 is an irrational number. Because हम देख सकते हैं हमने 5 माइनस रूट 3 को रैशनल अज्यूम करा, लेकिन रैशनल अज्यूम करने पे क्या हुआ, ये वाला जो टर्म है दिस रैशनल माइनस दिस 5 माइनस ए बाई बी, ये टर्म एक रैशनल रहा, लेकिन इक्वेशन के दूसरे साइड एक इरैशनल बन गया. तो रैशनल इज इक्वल्स टू इरैशनल, इट्स इम्पॉसिबल. यूनिवर्स में ऐसी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये इक्वेशन के अगेंस्ट है. ओके, दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये 5 माइनस रूट 3 जो हमने एक रैशनल अज्यूम करा था, ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता. अगर ये रैशनल नंबर होता तो ये इक्वेशन ट्रू होती, लेकिन ये गलत हो रही है. इट मींस this is definitely an irrational number. Okay, so this was the first part of question number 16. So let's now solve the second part. हमने देखा फर्स्ट पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है. ओके, सेकेंड पार्ट इज इजी, थर्ड पार्ट इज ऑल्सो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, आई विल गोइंग टू सॉल्व फोर्थ पार्ट. सो मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को ही सॉल्व करूंगा. सो अगर हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 7 रूट 5. 7 रूट 5 हमें प्रूफ करना है कि यह एक इरैशनल नंबर है. हाउ विल वी स्टार्ट? फर्स्ट वी विल अज्यूम, लेट अस अज्यूम 7 रूट 5 इज रैशनल. हम मान लेते हैं कि 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. ओके, नाउ अगर 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो मैं कह सकता हूं कि 7 रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी. ओके, मतलब मैं इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, और p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, मतलब रैशनल नंबर्स होंगे. ओके,
सो 7√5 को मैंने a अपॉन b लिख दिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है? को प्राइम है। एज सच a और b के को प्राइम होने से कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। Even if you do not write that a and b are co-prime, it do not matter. It's because both are integers. So हमें मतलब है कि ये नंबर एक रैशनल नंबर बन जाए। a upon b should be a rational. That's it. Okay. So from this I can write this as √5 is equals to a upon 7b. Okay. मैंने 7 को नीचे शिफ्ट कर दिया तो a upon 7b. Now see in the RHS I have a that is a rational number, 7 a rational number, b is also a rational number. In all I will say that this complete RHS is a rational number. While in LHS we have √5. So जैसा हमने √2 को irrational प्रूफ किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप √5 को भी irrational प्रूफ कर सकते हैं। सेम मेथड है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ओके, सो मैं कहूंगा कि √5 क्या है? एक irrational नंबर है। ये फैक्ट हमें लेकर चलना है। सो अगर √5 एक इरेशनल है तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं LHS इरेशनल है, RHS रैशनल है, ऐसा नहीं हो सकता। एक इक्वेशन में एक तरफ इरेशनल दूसरी तरफ रैशनल, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स एन इक्वेशन। सो वी आर इक्वेटिंग द टू साइड्स, द टू साइड्स शुड बी इक्वल, बट हियर इक्वल नहीं आ रही। अब अगर इक्वल नहीं आ रही तो ये क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज हमने 7√5 को एक रैशनल नंबर अज्यूम करा। अगर हम इसे रैशनल नंबर ना अज्यूम करें तो इस तरह की गलती, इस तरह की इक्वेशन नहीं बनेगी। ओके, लेकिन अगर इस तरह की इक्वेशन बन रही है मतलब कहीं ना कहीं गलती है। क्या गलती है? गलती यह है कि हमने 7√5 को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया है। सो व्हाट वी कैन सी, सिंस LHS is not equal to RHS, hence our assumption is wrong. Our assumption is totally wrong that 7√5 is a rational number. It's totally wrong. So what is true? 7√5 is an irrational number. 7√5 is definitely an irrational number. So this was the fourth part of question number 16. बाकी के 3 parts आप solve कर सकते हैं. They are very easy. So this completes the 16th question. First note this, then we will continue. Okay, let us now solve the 17th question. It says there are 120 boys and 114 girls in a school. The school authority decided to have maximum number of mixed sections. Mixed sections means the co-ed sections. So as to accommodate equal number of boys and equal number of girls in each section. What is the maximum number of sections possible? Okay, so the question number 17 says that in a school there are 120 boys and how many girls? 114 girls. So in that school we have 120 boys and 114 girls. What the school authority decided is to create maximum possible mixed sections, means that kind of section in which boys and girls both study together. Okay, that is the co-ed sections. So in a mixed section we will going to have a condition that all the mixed sections should have equal number of boys and all the mixed sections should have equal number of girls. It is not like that boys and girls should be equal. It is like that all sections should contain equal number of boys and all sections should contain equal number of girls. Okay, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि boys और girls बिल्कुल बराबर होने चाहिए. Okay, because क्या लिखा है? Such that so as to accommodate equal number of boys and equal number of girls.
नाउ अगर यहां पर ऐसा लिखा होता इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तब हम कहते हैं कि हाँ हर एक सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं कहा गया। यहां पर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज अलग से कहा गया है और इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स अलग से कहा गया है। इट मींस हमें बॉयज सभी सेक्शंस में बराबर करने हैं और गर्ल्स को सभी सेक्शंस में बराबर करना है। मींस कैसा सेक्शन पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल कि हर एक सेक्शन में 2 बॉयज हो, ओके, और हर एक सेक्शन में 3 गर्ल्स हो। ये चीज भी पॉसिबल है, ओके। क्यों? क्योंकि गर्ल्स हर सेक्शन में इक्वल है और बॉयज हर सेक्शन में इक्वल है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखें तो बॉयज और गर्ल्स इक्वल नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज क्वेश्चन में इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि 120 बॉयज और 114 गर्ल्स को हम किस तरह से बराबर बराबर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें सच दैट कि नंबर ऑफ मिक्स सेक्शंस ज्यादा से ज्यादा हो सके, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिक्स्ड सेक्शंस पॉसिबल, कितने ज्यादा सेक्शंस में बना सकता हूं। सो इफ इट इज आस्किंग टू डिवाइड द बॉयज एंड डिवाइड द गर्ल्स सच दैट द सेक्शन, each section, okay, the number of sections should increase, okay. Now if number of sections is increasing, then the number of students or number of boys or number of girls in each section should be less and less, okay, so as to increase the size of section, okay, because 120 boys हैं, अगर मैं सभी को एक सेक्शन में रख दूंगा और 114 गर्ल्स हैं, सभी को एक सेक्शन में रख दूंगा, so how is it possible to create large number of sections? In that case I will going to have only one section, but I need to have maximum possible sections. So observe this condition. This is boys and this is girls. Boys are 120 and girls are 114. So if I start dividing the boys, let us say I divide the boys in 2 parts. If I divide the boys in 2 parts, then how many boys we will going to have? We will going to have 60 and 60, the batch of 60 boys, okay. Similarly if I divide the girls in 2 parts, what I am going to have is 57 girls and then 57 girls. So I can create a section using this 60 boys and 57 girls, and I can create a section using this 60 boys and 57 girls. So I will going to have 2 sections, okay. But are there more sections possible? क्या और sections भी possible हैं? Let us observe, let us think. हम देख सकते हैं कि boys को मैंने 2 से divide करा, मतलब 120 एक ऐसा नंबर था जो 2 से divide हो जाता है, 114 एक ऐसा नंबर है जो 2 से divide हो जाता है, इसीलिए हमने इसे divide कर दिया। क्या 123 से भी divide हो सकता है? क्या 114 3 से भी divide हो सकता है? Okay, this 2 is what? This is the number of sections. तो बॉयज और गर्ल्स के ये 2 और 2 सेक्शंस बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बॉयज के 2 सेक्शन हैं, गर्ल्स के 3 हैं। इन दैट केस वी विल नॉट गोइंग टू हैव मिक्स्ड सेक्शंस, ओके। सो बॉयज अगर 2 सेक्शंस हैं, बॉयज के 3 सेक्शंस हैं और गर्ल्स के भी 3 सेक्शंस हैं, तो पर सेक्शन कितने बॉयज आ गए? इन दिस केस वी विल गोइंग टू हैव 40 बॉयज पर सेक्शन, एंड इन दिस केस इफ आई डिवाइड दिस बाय 3, व्हाट आई विल गेट? This is 3 3s are 9, 3 8s are 24. So 38 girls in each section. So I can create 3 sections. Each section will going to have 40 40 and 40 boys and 38 38 and 38 girls. क्या 3 सेक्शन मैक्सिमम है? क्या इससे ज्यादा भी सेक्शन बनाए जा सकते हैं? हाँ, बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 40 बॉयज हैं, इनको वापस से मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 38 गर्ल्स हैं, इनको वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इट मीन्स ओवरऑल मैं कहूंगा कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इसको और इसको डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर हमने 2 देखा, ऐसा नंबर हमने 3 देखा, लेकिन हमें इस नंबर को मैक्सिमाइज करना है, हमें एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 120 और 114 दोनों को डिवाइड कर सके। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 114 एंड 120 दोनों को डिवाइड कर सके? व्हाई? बिकॉज दैट नंबर will be the number of sections, okay. So ultimately what I mean to say is that maximum number
of sections is basically equal to largest number which can divide 120 and 114. That means it is equal to HCF of 120 and 114. It simply means the HCF of 120 and 114. तो वह सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके वह होगा HCF, और 120 और 114 का HCF कितना आता है? लेट अस डिटरमाइन द HCF. 120 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा इट विल गिव यू 2 to the power 2 और 3, 2 to the power 3. Okay, this is then 2 into 2 into 2, then 3 to the power 1 and 5 to the power 1. Okay, and 114 it will give you 2 to the power 1, 3 to the power 1 and 19 to the power 1. Okay, प्राइम फैक्टराइज करने पे हमें ये मिलेगा. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन पे ये मिलेगा. HCF कैसे डिटरमाइन करेंगे? HCF में हम सभी प्राइम नंबर्स को यूज करेंगे, 2, 3, 5 और 19. अब हम इन सब की पावर्स लगाते हैं. कौन सी पावर्स? मिनिमम पावर, सबसे छोटी पावर जो होगी वो. सो 2 की सबसे छोटी पावर, 2 की लीस्ट पावर क्या दिखाई देती है? इट्स 1. 3 की इट्स 1. 5 की, यहाँ पर 5 की पावर 1 है लेकिन यहाँ नहीं है तो इट्स 5 की पावर 0. देन 19 की, यहाँ पर 19 नहीं है सो इट्स 19 की पावर 0. अल्टीमेटली HCF इज इक्वल टू 6. अल्टीमेटली HCF कितना हो गया? 6. सो 6 क्या रिप्रेजेंट करता है? 6 मतलब अगर मैं इन सभी बॉयज के 6 बराबर टुकड़े कर दूं और गर्ल्स के 6 बराबर टुकड़े कर दूं तो मैं सेक्शंस में 6 मिक्स्ड सेक्शंस बना सकता हूं. मैं ऐसे सेक्शंस बना सकता हूं जिन सभी सेक्शंस में नंबर ऑफ बॉयज इक्वल हो और उन सभी सेक्शंस में नंबर ऑफ गर्ल्स भी इक्वल हो. इमेजिन अगर मैं इन बॉयज के 10 पार्ट्स में 10 पार्ट्स करता, इन बॉयज नंबर ऑफ बॉयज के इन ग्रुप के 10 टुकड़े बनाता, क्या मैं नंबर ऑफ गर्ल्स के भी 10 टुकड़े बना सकता था? नहीं, 10 केसेस नहीं बन पाते. वाई? बिकॉज 114 10 से डिविजिबल नहीं है. 120 हाँ 10 से डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है. तो फिर क्या होता? हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं आ पाती. ओके, सो जब मैं 120 को 6 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 20. 114 को 6 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 19. सो आई विल से देयर विल बी 6 सेक्शंस. हमें 6 सेक्शंस मिलेंगे और ईच सेक्शन विल हैव each section will going to have 20 boys and 19 girls. हर एक सेक्शन में आप देखेंगे कि 20 बॉयज हैं और 19 गर्ल्स हैं. ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 17. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ HCF. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए.